उमर वॉज लियो एंड सो एम आई। कि वो टॉक्सिक है लेकिन फिर भी आप जस्टिफिकेशन देते हैं, उस कैरेक्टर को डिफेंड करते हैं, वाई? रियलिस्टिकली सोचा जाए तो यस, ही वॉजंट एन आइडियल मैन। टाइम्स टू इमोशनली अनस्टेबल पीपल कैन हील वन अनदर। आई गेट उमर, आई गेट एवरीथिंग, आई लूज हिम, आई लूज एवरीथिंग। कौन कहता है कि मैं उमर जहांगीर मैच्योर हो चुका हूँ? कम से कम आज जो मैंने मम्मी के साथ किया, उसको देखने वाला कोई भी शख्स मुझे मैच्योर समझ सकता है। Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Fatima and I review books on this channel. I know कि मैंने कहा था कि मैं अमर बेल कभी रीड नहीं करूंगी जब मैंने एक वीडियो बनाई थी अंडर द नेम ऑफ उर्दू नॉवेल्स आई एम टेरिफाइड टू रीड, लेकिन अब मैं आपके सामने हूँ। Not exactly guilty, but slightly embarrassed. मेरा सच में कोई प्लान नहीं था ये रीड करने का, but one day I was randomly scrolling through YouTube जब मेरे सामने अमर बेल की ऑडियोज आई, and believe me, मैंने unintentionally उस पर क्लिक किया और बस एक एपिसोड सुनी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, and this continued till the end. मुझे एक चीज़ पता चली है, वो ये है that when it comes to Umaira ma'am, I tend to make exceptions for her. She holds some sort of power over me. So today I'll be reviewing Amar Bail, written by Umaira Ahmed. I wish I was holding the book in my hand right now while reviewing, but ये मेरी गलती है. I ordered the book really late, तो जब तक बुक आती तब तक ये रिव्यू शूट ना होता, तो मैंने ये रिव्यू पहले शूट कर लिया और बुक मेरी 4 दिन बाद आनी है. So that was my mistake. I ordered it late. But anyway, I really wish I could be holding it right now, but it's okay. We have to do this in this way. ये एक ऐसा रिव्यू है जिसके बारे में मैंने बहुत सोचा। मैं इस रिव्यू को बहुत रियलिस्टिकली एंड फिक्शनली दोनों वे से करूँगी। वन ऑफ द टफेस्ट रिव्यूज़ एवर, क्योंकि ये बुक पढ़ के मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए। आई कुडंट अंडरस्टैंड। मैं नॉवेल्स रियलिटी से भागने के लिए रीड करती हूँ, बट इस नॉवल ने उतना ही मुझे रियलिटी से अटैच रखा। ये रिव्यू बिल्कुल मेरी ओपिनियन है, सो यू कैन एग्री टू डिसएग्री विद मी एट एनी पॉइंट इन द वीडियो। इट्स ऑलराइट। I felt all sorts of emotions, लेकिन जो emotion मुझे सबसे ज़्यादा feel हुए, that were of anger and confusion, and it frustrated me so much. There were so many points in the story where I could relate with the characters, and quite frankly speaking, I did not want to relate at all because it was so harsh. Guys, look at the weather today. I think this weather is good if you want to enjoy it without making a video, but when you're making a video, the lighting and everything is so bad, so you guys have to please bear with that. Meri galti hai. I shouldn't have got my camera and made a video today, but I don't have time, so आज ही मेरे पास time था तो मैंने कहा चलो आज ही shoot कर लेते हैं. So please, if there's any problem in the lighting, in the framing, just please ignore that. Nonetheless, let's officially start the review. This review will have spoilers in it because no reader is unaware of what happens at the end of this novel. For the past few months, मैंने वो death scene इतनी बार देखा और सुना है that when I finally read it, I felt a little desensitized towards it. ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन I was used to that feeling, so yeah. अगली बार मैं अलीज़ा को जॉय दूंगा, फिर एटर्निटी। आपको पता है मुझे इसका मतलब क्या लगा? That I will make Aliza the happiest person ever and then I will give her eternal pain. Two characters, Aliza Sikandar, timid, reserved, unloved, impulsive, emotional. Umar Jahangir, composed, practical, confused, bitter, overpowered, defeated. They were cousins, which is something that we are definitely going to ignore because I have an ache regarding cousin romance. They got an 8-year age gap, one more fact that I am going to skip over. And that slap scene was so unnecessary, it could have been avoided, so I won't be talking about that as well. If you guys do not agree with me, this is completely fine. आपका अपना ओपिनियन है एंड आई रिस्पेक्ट दैट। बस ये 3 चीज़ें मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सो लेट्स मूव ऑन टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स इन द नॉवल। इस नॉवल का स्टार्ट बहुत ज़्यादा स्वीट था, विच फूल्स द रीडर्स इनटू थिंकिंग दैट ये एक हैप्पी नॉवल है, लेकिन डू नॉट गेट सो एक्साइटेड। आगे आगे देखिए होता है क्या। This was nowhere a lovey-dovey novel. This is a tragic one. मुझे लव स्टोरी कहीं भी नजर नहीं आई. It was all very very brutal. आप सब लोगों ने डिटेल नोटिस की बुक के स्टार्टिंग चैप्टर में she enters Umar's room and she stands in front of the mirror and she feels the wetness of the perfume on her hair. और यही सेम सीन पे बुक की एंडिंग हुई है. मुझे ये डिटेल वैसे काफ़ी अच्छी लगी.
This book focuses on the bureaucratic system of Pakistan and it highlights the lust for power, which often blurs the line between right and wrong. I really admire the way everything was described in this book, the kind of truth that we all are already aware of, which also shows just how helpless one individual can actually be. عمر اور علیزہ کے بیچ کافی سملیرٹیز تھی. بوتھ were from broken families, both were neglected, both loved perfumes, they both loved art, and they both tried to attempt suicide. اور مجھے کبھی کبھی عمر بھی immature لگتا تھا اور impulsive بھی, just like علیزہ. اس بک میں 5 لوگوں نے عمر کو سجیسٹ کیا to get married to علیزہ, and they were Granny, Zulkarnain, Abbas, علیزہ herself, and then Judith. But he chose to listen to no one. عمر سے زیادہ کنفیوز کریکٹر میں نے کبھی نہیں پڑھا, اینڈ آئی گیس یہ اس کے کریکٹر کی خاص بات تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹاکسک ہے لیکن پھر بھی آپ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں, اس کریکٹر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. وائی؟ ریئلسٹکلی سوچا جائے تو یس, ہی wasn't an ideal man, he was a coward. He could have changed if he wanted to, but sadly وہ ایسا نہیں چاہتا تھا. اور فکشنلی سوچا جائے تو yes, he deserved to end up with Aliza, because sometimes two emotionally unstable people can heal one another. اس سب سے مجھے ایک سین یاد آتا ہے. اپنے بہترین دوست سے اس کی شادی کروا سکتا ہے, خود کیوں نہیں کر سکتا؟ آپ ہی تو کہتی رہی. وہ علیزہ کا بہت خیال رکھتا ہے. نانو کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی. صرف خیال نہیں رکھتا, وہ اس سے محبت کرتا ہے, انہوں نے مدھم آواز میں کہا. پھر ممی, پھر انکار کیوں کیا اس نے؟ اس نے کہا, میں فیملی مین نہیں ہوں. اچھا دوست بن سکتا ہوں مگر اچھا شوہر یا اچھا باپ مجھے بننا نہیں آتا. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس کی زندگی خراب ہو. میرے جیسے ٹیمپرمنٹ کے آدمی کے ساتھ وہ نہیں رہ سکے گی. 2 نامکمل انسان مل کر ایک مکمل زندگی نہیں گزار سکتے, نہ کوئی پرفیکٹ فیملی بنا سکتے ہیں. اور میں علیزہ یا عمر جیسے کوئی اور بچے نہیں چاہتا. وہ زندگی میں بہت کچھ ڈیزرو کرتی ہے. اچھا شوہر, محبت کرنے والا خاندان, بچے, سکون, بہت کچھ. اور یہ سب کچھ جنید اس کو دے سکتا ہے, میں نہیں, کیونکہ میری طرح جنید کی شخصیت پیراڈاکسز کے بلاک سے مل کر نہیں بنی. میں نے اس سے کہا تھا وہ تم سے محبت کرتی ہے. اس نے کہا آج کرتی ہے, کل نہیں کرے گی. میرے ساتھ کچھ سال گزارنے کے بعد وہ اتنی تنہائی کا شکار ہو جائے گی جس تنہائی کا شکار وہ آپ کے گھر میں ہے. میں جس فیلڈ میں ہوں اس میں تو میں اسے وقت تک نہیں دے سکوں گا. اور پھر میری جاب میں مجھے بہت سے ایسے کام کرنے ہوتے ہیں جو اسے ناپسند ہیں. میں نہیں چاہتا وقت گزرنے کے ساتھ وہ اور میں اپنے اس رشتے یا تعلق پر پچھتائیں. میں نے اسے بہت سمجھایا تھا. میں نے اس سے کہا تھا جہاں محبت ہو وہاں کمپرومائز ہو جاتا ہے. اس نے کہا کہ میں صرف محبت چاہتا ہوں, کمپرومائز نہیں. میں نے ہر رشتے میں کمپرومائز دیکھا ہے, مگر میں اپنے اور علیزہ کے رشتے میں کمپرومائز نہیں دیکھ سکوں گا. اور میں جانتا ہوں میں اس سے شادی کروں گا تو یہی سب کچھ ہوگا. میں کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک کمپرومائز کی زندگی بھی گزاروں تو مجھے وہ تکلیف نہیں ہوگی جو مجھے علیزہ کے ساتھ ایسی زندگی گزار کر ہوگی. کسی دوسری عورت کی تکلیف دیکھ کر مجھے کوئی احساس جرم نہیں ہوگا, مگر علیزہ, میری وجہ سے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے گی تو میں خود کو معاف نہیں کر سکوں گا. پچھتاوے کے ساتھ جینا مجھ جیسے آدمی کے لیے بہت مشکل ہے گرانی. اس نے مجھ سے کہا تھا. میں اسے اور کیا سمجھاتی, کیا کہتی. پھر میں نے علیزہ سے وہی کہا جو وہ کہلوانا چاہتا تھا. میں نے اس سے کہہ دیا کہ عمر اس سے محبت نہیں کرتا. اس کے نزدیک وہ صرف ایک دوست ہے, کزن ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. کمپرومائز پہ میری اوپینین یہ ہے, اینڈ دس از اے ویری امیچور اوپینین, آئی نو, لیکن آئی فیل کہ اگر ہم کمپرومائز کرتے ہیں سو اٹ میکس اس فیل لمیٹڈ اینڈ ریسٹرکٹیڈ ٹو وٹ وی ہیو. ہم اپنے آپ کو ریسٹین کر لیتے ہیں. وی فیل ٹو ایکسپیرینس تھنگس ٹو دا فلسٹ. Personally, I don't like the concept of compromise, لیکن at the same time maturely سوچا جائے تو compromise ضروری ہے, لیکن I wish نہ ہوتا. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں. Umar was Leo and so am I. And there was a time in my life when I decided to give the CSS exam myself, and guess what? I also wanted to join the foreign service, لیکن پھر ایسا نہیں ہوا. Anyway, coming back to the topic, I don't entirely blame Umar for the way he turned out to be in the novel, which was him being a corrupt police officer, and neither do I blame Aliza for turning out to be bitter in a novel. Children from broken families are never normal and they can never be normal. اور اس سب کے لیے ان کے پیرنٹس ہوتے ہیں to blame, especially the fathers. Jahangir Maz, his father, ruined Umar's life, and the way he ruined Zara's life, Umar's mother, was miserable to read.
मुझे ये नॉवल पढ़ के लगा कि पेरेंट्स कभी-कभी बहुत सेल्फिश हो जाते हैं एंड दे ट्रीट देयर चिल्ड्रन एज puppets and that is exactly what happened. Similarly, Aliza's parents did the same with her and the amount of negligence that she felt from her parents was quite sad and it did not stop and it did not stop throughout the book. बिकॉज ग्रैनी ने भी सेम किया उसके साथ और वो उसको सिर्फ कंट्रोल करती थी. शी टुक अलीजा एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट एज समवन टू अंडरस्टैंड एंड लव. जिंदगी में एक चीज़ होती है जिसे कॉम्प्रोमाइज़ कहते हैं. पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ती है. जिस चीज़ को तुम बदल ना सको उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करो, मगर अपनी किसी ख्वाहिश को कभी भी जुनून मत बनाया करो. ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं मिल सकती, चाहे हम रोएं, चिल्लाएं या बच्चों की तरह एरिया रख दें, क्योंकि वो किसी दूसरे के लिए होती है. जैसे तुम्हारे पेरेंट्स अब किसी और के पेरेंट्स हैं, तुम्हारा घर किसी और का घर है, मगर इसका ये मतलब नहीं होता कि ज़िंदगी में हमारे लिए कुछ नहीं होता. कुछ ना कुछ हमारे लिए भी होता है. उमर वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन जो दूसरों को एडवाइस देता था लेकिन खुद अपनी एडवाइस नहीं लेता था. और ऐसे लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बस दूसरों को नसीहतें करते हैं लेकिन उस नसीहत पे खुद अमल नहीं करते. इन अ वे आई थॉट दैट ही वाज अ लिटिल हिपोक्रेट. आप एक इंतहाई अजीब इंसान हैं. वो अलीजा से इस जवाब का तवक्को नहीं कर रहा था. आप मुझे वो चीज़ें सिखाना चाहते हैं जो खुद आपको नहीं आती. उमर साकित रहा. जिंदगी के स्टेज पर आपकी जगह कहाँ है कि आप खुद ये जानते हैं. उमर कुछ बोल नहीं सका. अलीजा अब जैसे उसे खोजने की कोशिश कर रही थी. आपको पता है बाज़ दफ़ा मुझे आप पे कितना तरस आता है. उमर का चेहरा सुर्ख हो गया. कितनी हमदर्दी महसूस होती है आपके लिए. हाई बेरहमी से उसकी शख्सियत की पर्दे उतार रही थी. आप और मैं दोनों जिंदगी में एक ही जगह खड़े हैं, बस फर्क ये है कि आपको खुद को छुपाना आता है, मुझे नहीं आता. उमर को वह यकदम बहुत मैच्योर लगी. वो उसकी बात में मुदाखलत किए बगैर उसे देखता रहा. आपने खुद हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है. वो अब उससे पूछ रही थी. किस चीज़ के साथ. अपने पेरेंट्स की अलहदगी के साथ. वो कुछ नहीं बोला. अलीजा के होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट उभरी. और आप चाहते हैं कि मैं ये भूल जाऊं कि मेरे पेरेंट्स अपनी अलग ज़िंदगी बसा चुके हैं. वो अब उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती थी. आप 10 साल के थे जब आपके पेरेंट्स में तलाक हुई. क्या आपने कुछ भी महसूस नहीं किया? कि आपको कोई डिप्रेशन नहीं हुआ? वो अब उसे चैलेंज कर रही थी. फिर जहांगीर अंकल को नापसंद क्यों करते हैं आप? अपनी मम्मी की शक्ल देखने पर तैयार क्यों नहीं? अपने सौतेले बहन भाइयों का कभी काम तक नहीं लिया आपने. तो मुझसे क्या जानना चाहती हो अलीजा. उमर का लहजा पुरसकून था. अलीजा चिढ़ गई. सच, सिर्फ सच. वो सच जो आज तक आपने मुझे नहीं बताया. सच ये है कि मुझे अपने माँ बाप से नफरत है. सच ये है कि मैं आज तक उन दोनों को माफ नहीं कर सका. सच ये है कि मैं उन दोनों में से किसी की भी इज्जत नहीं करता. सच ये है कि मेरे सौतेले बहन भाई मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते. सच ये है कि मुझे उन लोगों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सच ये है कि 16 साल पहले उन दोनों के दरमियान होने वाली अलहदगी की याद अभी भी एक गर्म सलाख की तरह मेरे वजूद में उतर जाती है. वो अब बोलता जा रहा था. सच ये है कि तुम्हारी तरह मुझे भी दुनिया में अपने माँ बाप से ज़्यादा खुदगर्ज कोई नहीं लगता. सच ये है कि तुम्हारी तरह मैं भी बहुत अरसे ये सब कुछ भुलाने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट के ज़ेरे इलाज रहा. सच ये है कि तुम्हारी तरह मैंने भी एक बार स्लीपिंग पिल्स खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की. सच ये है कि अब भी तुम्हारी तरह मुझे भी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद नज़र नहीं आता. और सच ये भी है कि इस सब के बावजूद मैं अब जिंदा रहना चाहता हूँ. क्या इतना सच काफ़ी है या कुछ और सच भी सुनना चाहती हो? उसका चेहरा ये सब बताते हुए इतना बेतासुर और लहजा इतना मुतमईन था कि अलीजा को यूं लगा जैसे वो अपने बारे में बात करने के बजाय किसी दूसरे की बात कर रहा हो या फिर किसी एक्ट की डायलॉग स्क्रिप्ट देखकर पढ़ने की कोशिश कर रहा हो. मैं तुम्हें सिर्फ तकलीफ से बचाना चाहता हूँ, उमर ने संजीदगी से कहा. मैं उस रास्ते से पहले गुजर चुका हूँ. जानता हूँ कहाँ गरा है, कहाँ पत्थर, कहाँ पैर जख्मी हो सकते हैं, कहाँ घुटनों के बल गिरने का खदशा है. और मैं चाहता हूँ तुम उस रास्ते से गुजरते हुए वहाँ ठोकर ना खाओ जहाँ मैं खा चुका हूँ. वो चुपचाप उसे देखती रही. इस पूरे नॉवल में मुझे सबसे बुरा अलीजा के लिए लगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा यूज़ हुई, मैनिपुलेट हुई, इंसल्ट हुई एंड मिसअंडरस्टूड हुई. सिकंदर को किसी भी उम्र में बेवकूफ़ बनाना दुनिया का आसान तरीन काम है. उसने दिल ही दिल में एतराफ़ किया. मैं लोगों को जांचने और परखने में आज भी उतनी ही नाकाम हूँ जितना पहले थी. कोई डिग्री, कोई तजुर्बा मेरी समझदारी में इजाफा नहीं कर सकता. मैं कभी भी लोगों के लफ्ज़ों में छुपे हुए असली मफ़हूम तक नहीं पहुंच सकती. या शायद उमर जहांगीर वो शख्स है जिसके लफ्ज़ों को मैं कभी झांचना नहीं चाहूँगी.
There was this scene between Saleha and Aliza, and I want to mention that as well. तुम्हारे पास सब कुछ है, माँ बाप, बहन भाई, और जिस शख्स को तुमने पसंद किया उससे तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई। हर रिश्ता है तुम्हारे पास। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। मेरे पास इसमें से एक भी नहीं है। 7 साल में मैंने बाप की शक्ल तक नहीं देखी, और वो इसी मुल्क में है। 4 साल से मैं अपनी माँ से नहीं मिली। उन दोनों की डाइवोर्स और दूसरी शादी के बाद मैं इतने सालों में उनसे कितनी बार मिली हूँ, मैं तुम्हें गिन कर बता सकती हूँ। पिछले 10 साल में मेरा हर रिश्ता, हर ताल्लुक उम्र से शुरू होकर उसी पर खत्म हो जाता है। मेरे लिए वो मेरी पूरी फैमिली बन चुका है। हर रिश्ता चंद लम्हों के लिए रुकी। तुम्हें इतने रिश्तों में से अगर किसी एक रिश्ते से महरूम होना पड़े तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी कमी पूरी करने के लिए दूसरे रिश्ते हैं, दूसरे लोग हैं। मेरे पास दूसरा कोई नहीं है। I get Umar, I get everything. I lose him, I lose everything. Cannot ignore the element that Umar really helped her come out of her shell through his reality checks. उसने उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्प की, जबकि वो खुद अपनी एडवाइस नहीं मानता था, उस पर वर्क नहीं करता था. He preached without following it himself. Also, the scene in which Zara comes to visit Umar was so depressing. She really cared for him, and the regret that he felt after. तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। आप मुझे बहुत साल पहले छोड़ चुकी हैं, और उस वक्त भी मैं आपका बेटा ही था। चंद साल बाद जब तुम शादी करोगे और तुम्हारे बच्चे होंगे, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि औलाद को छोड़ना कितना मुश्किल होता है। कभी शादी नहीं करूंगा। आपने मुझे कोई नया रिश्ता कायम करने के काबिल नहीं छोड़ा। आपने रिश्तों को कितना जहर आलूद बना दिया है मेरे लिए, आपको अंदाजा नहीं है। बेड पर चित लेते हुए वो तारीकी में कमरे की छत को बूरा होता है। स्वात में माँ को अपनी फैमिली के साथ देखने पर जिस तरह वो वहां से भागा था, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी मम्मी उसके पीछे लाहौर आ गई थी। ऐसा पिछले 14 साल में ऐसा बहुत बार हुआ था कि माँ को कहीं देखने पर वो सरपट वहां से भाग निकला हो, और ज़ारा अगर उसे देख लेती तो वो इसी तरह उसके पीछे आती थी, और माँ का अपने पीछे आना, इस तरह आना उसे अच्छा लगता था। शायद लाशऊरी तौर पर वो आज भी मुंतजर था कि वो उसके पीछे आए, और फिर वो उसी तरह माँ का हाथ झटके जिस तरह पिछले 14 साल में झटकता आया था। और माँ के साथ इस तरह करने के बाद हर बार वो ऐसे ही कमरा बंद करके बैठ जाया करता था। कौन कहता है कि मैं उमर जहांगीर मैच्योर हो चुका हूँ? कम से कम आज जो मैंने मम्मी के साथ किया, उसको देखने वाला कोई भी शख्स मुझे मैच्योर समझ सकता है? ना होशमंद। आंखें बंद करते हुए उसने जैसे बेचारगी से सोचा,